Yes, the next activity is debate. Debate is the daily routine life. This activity is done every day, maybe in railway compartment, maybe somewhere in our society, maybe somewhere in our family, and the same activity we are going to perform in our practical after business meeting. So what is meant by debate? What is the nature of debate? What are the different advantages or the purpose of debate? In this video we are going to have a look at. So let's discuss first of all what is meant by debate. So debate, as you all understood, debate means a topic will be given to you all. Once the topic is given, two teams, two separate teams or two different speakers, they will be allotted one side of that topic. One person or the one speaker will talk about the pros or the advantages of that particular topic, and another team or the speaker will talk about the cons of the topic. So because you guys are not that mature, what I will do is I will give you a topic in advance. Maybe 5 to 6 days in advance I will be given you a topic, and that topic you will come prepared. But I will not give you which side you need to talk. What I want is you should come prepared with both the sides. For example, if I give you a topic that girls are the best, so sometimes few of you may agree with that and most of you may not agree with that. But I will not give you who would be talking in favor of the statement or who would be going against the statement. What I want is you come prepared with both the sides. And at 11th hour, in next practical, I will divide you and I will assign you the side. Maybe one team will talk about the pros and another team will talk about the cons. But I will not give you in advance whether you would be talking in favor of the topic or against the topic. The reason is I want you to understand both the things, because you never know in future you might be for the topic, you might be in the team which would be talking about for the topic or against the topic. So both the things you should develop. That's why I will be giving you only the subject, only the topic, and not the side. Is that clear? So debate is what? It's a verbal argument. Verbal. आपको बंदूकें लेकर नहीं आना है कि नेक्स्ट टाइम हाँ सर झगड़ा होने वाला है तो चलो हम लोग कुछ छुरिया और चाकू लेकर आते या लाठी विठी लेकर आते. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड. कंटेंट एंड योर लैंग्वेज. लॉजिकली बात करना है, विथ काम एंड कंपोजर बात करना है. यू आर नॉट सपोज टू रेज योर वॉल्यूम. वरत हमें अपनी आवाज़ नहीं बढ़ानी है, हमारा एग्रेशन नहीं दिखाना है. व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट any topic or any side of the topic, what you need to do in a very calm and composed and professional manner, you have to explain why you want to say this. समझते हैं सर्वांना? I hope everybody is with me. So it's a verbal argument. Next activity that you are going to perform. You may talk for the topic or against the topic. That will be decided by me. So what is the methodology? How it goes? देखो, there would be a judge, there would be a timekeeper. Why we need timekeeper? Because it's a time bound activity. Maybe 10 minutes, 15 minutes overall performance, that much time may be allotted. And there is another method also that I will discuss in due course of this session. Timekeeper अपना time slot लेके बैठेगा. जो जज होगा वो as per his or her criteria आपको जज करेगा कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. Is that clear? Topic will be given, you will come prepared, both the sides. There are two methods of debate. Number one, wherein from one team each speaker gets 4 to 5 minutes to talk about his or her point of view. Fine? Both for the topic and against the topic, every member from every team get 4 to 5 minutes to talk about what he or she feels about the topic. Right? And then they get 3 to 4 minutes to rebuttal. Now what is this rebuttal? Rebuttal means when you argue something, when you support something, you have your own logics and reasons. But the other opposite party or the members, they may not agree with that. So they will counter argue to what you said. Fine? And once they present their counter argument, you are going to counter their counter arguments. That is called rebuttal. Is that clear? रीबटल का मतलब होता है सामने वाला आपके पॉइंट्स को
आपको इरेज कर देगा और बोलेगा कि नहीं, आपके जो लॉजिक्स एंड रीजंस है वो बराबर नहीं है, बराबर लॉजिक्स एंड रीजंस ये है। तो आप उसी के लॉजिक को फिर से अपने लॉजिक से बोलोगे कि नहीं नहीं, वॉट एवर यू सेड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सो यू विल बी गेटिंग, और एवरी स्पीकर विल बी गेटिंग 3 to 4 minutes टू रीबटल। लेकिन रीबटल्स करते समय कुछ रूल्स है, वो रूल्स भी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला मेथड क्या है, एवरी मेंबर गेट्स 4 to 5 minutes टू टॉक, राइट, एंड देन 3 to 4 minutes टू रीबटल। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है 1 to 1। 1 to 1 मतलब क्या, बोथ द टीम्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड दे आर आर्गुइंग एंड काउंटर आर्गुइंग। वही के वही हो रहा है। एक बंदा बोलेगा, सामने वाला बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर उसका खत्म हो गया कि फिर इस टीम में से कोई भी एक बंदा बोलेगा या टीम मेंबर बोलेगा कि नहीं नहीं, व्हाट यू सेड दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ दीज आर दीज रीजंस। समझ में ही बात। दिस इज व्हाट 1 to 1 डिबेट इज, जो कि आपको करना है। हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपको 1 to 1 डिबेट करना है। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ कि नहीं नहीं सर, हमारे टीम के सभी लोग 3 से 4 मिनट में अपनी बात रखेंगे, बाद में सामने वाले टीम के मेंबर भी 3 से 4 मिनट में अपनी बात रखेंगे, और फिर हम लोग 2 to 3 minutes में रीबटल करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। लेकिन ज़्यादा मज़ा 1 to 1 में आता है। थोड़ा सा केओस होता है, समटाइम्स यू रेज योर वॉल्यूम, समटाइम्स सम पीपल स्टार्ट लाफिंग एंड continuously 2-3 people start talking, so it becomes a chaos. But don't worry, I am there to handle it. Or in a team there is always 1 or 2 leaders who control the things. They keep the discussion or the debate on track, and that's why it develops their leadership qualities. Points में आएगा। समझ में आई बात? Which language? हाँ, language, obviously our target language is English. In the first round, I will be giving you only one option, that is English. But I know कि most of you are from Marathi medium, तो जो second round होगा उसमें मैं आपको हिंदी और मराठी का ऑप्शन दूंगा, लेकिन उसको मैं जज नहीं करूंगा। I will judge only the first round wherein you will be talking only in English. अभी इंग्लिश प्रॉब्लम है तो उस पर आपको तैयारी करके ही आना पड़ेगा। बिना प्रिपरेशन के तो कुछ नहीं होगा, कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए, राइट? और वो होता है, अगर एटीट्यूड अच्छी है, काम करने की इच्छा है, तो काम ज़रूर होता है। क्लियर? सो अभी ये जो डिबेट है, इसके जो बेनिफिट्स है या रूल्स है, पहले रूल्स डिस्कस करते हैं। पहला रूल क्या है? Team or speaker should be strict. Yes. To these are the points. पहला यानी क्या, आपको समझो आपने बोल दिया कि मैं फॉर द टॉपिक बोलूँगा, तो थ्रू आउट द डिबेट आप फॉर द टॉपिक ही बोलोगे, अपना स्टैंड चेंज नहीं करना है। समझ में ही बात कि हाँ हाँ यार, ये टीम ज़्यादा हावी हो रही है, इनके पास ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, या कभी कभी डिस्कशन में हमें खुद भी लगता है कि नहीं यार, मैं अपोजिट टीम में होता तो मैं अच्छा डिस्कस करता। तो इन द फ्लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपना स्टैंड चेंज कर देते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू चेंज इट, स्टिक टू योर पॉइंट। और इसमें टीम एफर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, समझो आर्य ने कुछ बात करना स्टार्ट कर दिया और तुम्हारे टीम में अंकित को पता चल गया कि आर्य ने जो टॉपिक दिया है या जो पॉइंट दिया है वो काफ़ी वीक है, सामने वाला बिल्कुल इसको रिफ्यूट करेगा, स्ट्रांगली रिफ्यूट करेगा। तो क्या करना है, आर्य को रोक देना है और बोलना है दूसरा पॉइंट लेके शुरू कर देना है, लेकिन स्टैंड चेंज करना नहीं है। समझ में ही बात? कभी कभी ये भी हो सकता है कि जब एक लॉट में मैं देता हूँ कि भाई हाँ, आधे बच्चे इधर बैठो, आधे बच्चे रैंडमली मैं देता हूँ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई अच्छे स्पीकर सामने वाली टीम में चले जाते हैं, तो हमें पहले से ही डर लगता है कि यार ये इसमें तो असद है, वो तो अच्छा बात कर लेता है, तो शायद हमारे हारने के चांसेस ज़्यादा है। डोंट डू दैट। तुम लोग अगर घर से प्रिपेयर होके आओगे ना और आउट ऑफ थिंकिंग करके बहुत सारे पॉइंट्स लेकर आओगे ना, तो डेफिनेटली आप वो डिबेट जीतोगे। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, फाइन। आउट ऑफ बॉक्स मतलब क्या, शायद ही कोई उसके बारे में सोचेगा। दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, एंड दैट हेल्प्स यू आउट। दैट हेल्प्स यू आउट, दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डिबेट। विल डिस्कस इट। दूसरा रूल क्या है? Support your statement with evidence and reason. यस, हम लोग बहुत बार क्या होते हैं ना, सिर्फ बात कर लेते हैं, हवा में बात कर देते हैं कि नहीं नहीं अटेंडेंस इज़ कंपलसरी, नहीं नहीं अटेंडेंस शुड नॉट बी कंपलसरी। क्यों? आप जो भी रीजंस दोगे ना, वो फैक्ट्स के बेसिस पे चाहिए। फैक्चुअल बातें करनी है, आपको सपोर्ट करना है, डिफेंड करना है आपके स्टेटमेंट को, सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी है। इसके लिए यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी एंड कम प्रिपेयर्ड। You can go to Google Baba. Second point is
डोंट लाई और ब्लफ। देखो आपको रीजंस बतानी पड़ेगी कि वाई यू वांट टू पास दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, हवा में बातें तो हो गई ठीक है, कभी कभी लोग झूठ भी बोल देते हैं कि रिसेंट सर्वे ऐसा हुआ है उसके कारण 20,000 लोगों को ये प्रॉब्लम बढ़ गई इसके कारण। हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, डोंट लाई, क्योंकि जो जज बैठा ना उसको पता है कि आप लोग फेंका फेंकी कर रहे हो, सो आपकी पूरी टीम के पॉइंट्स खराब हो जाएंगे। नंबर 2, डोंट ब्लफ। ब्लफ मतलब क्या? वही जिस चीज़ का एविडेंस नहीं है वही सिर्फ बातें करते रहना। शायद वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो, लेकिन आपके पास अगर रीजंस नहीं है तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ब्लफ, राइट? द अनदर रूल of this particular debate is that when you rebuttal, when you counter argue something, at that time आपको पहले जिसने भी जो पॉइंट बोले हैं ना सिर्फ उनको काउंटर आर्ग्यू करना है, ना कि नया पॉइंट लाना है। नया पॉइंट आप तभी ला सकते हो जब आपको चांस मिलता है बात करने का पहली बार, राइट? तो ये होता है जब हर एक को 4-4 मिनट मिलते हैं बात करने का, लेकिन 1-to-1 में है ना आप लोग नया पॉइंट्स लेकर आ सकते हो, कोई इशू नहीं, राइट? और वही हम लोग करने वाले हैं। 1-to-1 में आप नया पॉइंट्स लेकर आओ, सामने वाले ने जो पॉइंट बोला है उसको आर्ग्यू करो, काउंटर आर्ग्यू करो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन एज लॉन्ग एज योर लॉजिक्स आर करेक्ट एंड द वे यू स्पीक दैट इज एक्सेप्टेबल, देयर इज नो एग्रेशन, आपका पॉइंट रिकॉर्ड होगा। इज दैट क्लियर? आपको आपका काम और कंपोजर रखना है। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व सिंस सो मेनी ईयर्स आई हैव बीन कंडक्टिंग दिस, कि जब भी मराठी या हिंदी में तुम लोगों का डिबेट होता है तो तुम्हारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्रेशन बढ़ जाता है, राइट? वो होना नहीं चाहिए। इंग्लिश में तो सब डिसेंट रहते हैं, राइट? आई नो द रीज़न बिहाइंड इट, बट एग्रेशन दिखाना नहीं, नॉट इन योर टोन, नॉट इन द ऑडिबिलिटी, नॉट इन योर एक्सप्रेशन कि देख लूँगा बाद में तुझे। आई हैव सीन दैट पीपल डूइंग इट। अगला पॉइंट, पर्पस। डिबेट क्यों करनी चाहिए, इसका जो रीज़न है या पर्पस है या एडवांटेजेस क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी तरफ ध्यान दो, बिकॉज दैट इज व्हाट द लर्निंग लेसन इज आउट ऑफ डिबेट। नंबर 1, it helps to generate new ideas. देखो, in a team there are so many people, in opposite team also there are so many people, and in your own team also there are so many people, and they have their own thinking and their own exposure. And as per their experience, exposure, reading and knowledge, they come up with so many ideas about the given topic. And you learn, oh, this topic can be tackled in this manner also. I never thought so. कि मेरे दिमाग में यार ये ख्याल क्यों नहीं आया, कितना सही पॉइंट है। So many ideas are generated. And देखो, कॉर्पोरेट में या किसी भी कंपनी में आप लोग जब काम करोगे ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए सब लोग इकट्ठा बैठते हैं एंड दे गो फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्या होता है पता है? बहुत सारे लोगों को एक ही प्रॉब्लम दिया जाता है और सबको बोला जाता है कि इसका सलूशन ढूंढ के निकालो। फिर हर एक बंदा या बंदी अपने एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज सब अप्लाई करके बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर आता है एंड दे टॉक अबाउट द डिफरेंट आइडियाज दैट दे हैव, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो हमारा डिबेट भी वैसा ही है। So many ideas are born in your mind and in your brain and you share. Opposite also and your own point also. So that is one learning lesson that you get, कि how to generate new ideas, how to understand new ideas, how to have respect for each other's ideas. कर लो। अगला point. Debate promotes critical thinking. Now, what is this critical thinking? Critical thinking means two things: advantages and disadvantages, good and bad point of one topic. For example, अगर मैंने बोला कि भाई सभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑनलाइन होनी चाहिए, फाइन, तो ऑनलाइन होनी चाहिए, इसके बहुत सारे लॉजिक्स लोग बताएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ऑनलाइन होनी नहीं चाहिए। So your brain has got the capacity to talk something positive as well as negative. लेकिन out of positive and negative, what is the good one? What is the correct one? You learn this in debate. कि हाँ सही है, सामने वाला भले ही आपका ओपोनेंट है या कॉम्पिटिटर है, लेकिन सामने वाले के पास अगर सही आइडिया या सही ओपिनियन है,
आप डेवलप करते हो यहाँ पे कि हाँ ये सही बोल रहा है, मुझे इसको सिर्फ रिफ्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉजिकली बोल रहा है, सही बोल रहा है। आप ये सेंस डेवलप करते हो और किसी भी कंपनी में काम करोगे, सामने वाला भले ही आपका शत्रु हो या दोस्त नहीं हो या उसके साथ आपकी बनती नहीं हो, लेकिन वो कंपनी के लिए कोई अच्छी आइडिया पेश कर रहा है, तो आपने आपका ईगो साइड में रख के उसको ध्यान देना है, उसको थोड़ा सा थॉट देना है कि यस ये बंदे का आइडिया ये सही है एंड लेट मी एक्सेप्ट इट, डजंट मैटर उसकी और मेरी बनती नहीं है। क्योंकि एट द एंड हम लोग इंस्टीट्यूशन के लिए या कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी अगर बंद पड़ जाती है तो सब रास्ते पे आ जाएंगे। तो आपका ईगो या आपका पर्सनल ओपिनियन वो वहाँ पे मायने नहीं रखता। ये क्रिटिकल सेंस आप डेवलप करते हो एंड थैंक्स टू डिबेट इट गोज़ लॉन्ग वे इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। दिस क्रिटिकल थिंकिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। जैसे आप लोग डिप्लोमा के बाद हाँ ग्रेजुएशन करूँ या ना करूँ या जॉब करूँ, तो फिर आप ग्रेजुएशन के प्रोज एंड कॉन्स ढूंढोगे, डिप्लोमा के प्रोज एंड कॉन्स ढूंढोगे या जॉब करने के प्रोज एंड कॉन्स ढूंढोगे एंड देन यू डिसाइड। सो डिसीजन मेकिंग भी यहाँ से शुरुआत हो जाती है, समझ लो। नेक्स्ट, to learn friendly competition. यस, यहाँ पे कंपटीशन ही होगा। हम लोग थोड़े ना चाकू छुरी चलाने वाले हैं। सामने वाला अगर आपके ओपिनियन के साथ सहमत नहीं है, इफ द पर्सन इज नॉट अग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड, दैट इज एक्सेप्टेबल, यू लर्न, बट इट्स अ कंपटीशन। सो हेल्दी कंपटीशन क्या होता है एंड हाउ द डिफरेंट आइडियाज आर जनरेटेड, डजंट मैटर द आइडियाज आर डिफरेंट दैन व्हाट आइडिया आई हैव, यू एक्सेप्ट इट। सो वो जो एक सेंस होता है ना, दैट गेट्स डेवलप्ड इन डिबेट, जो कि आपको इस डिबेट में मिलने वाला है। फ्रेंडली कंपटीशन, अपने ही दोस्त है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। इवन विलियम शेक्सपियर ने एक बड़ा सा सलीलक्वी लिख के रखा है, टू बी और नॉट टू बी। मैं ये काम करूँ या ना करूँ, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हर एक को हर दिन पड़ता है, लेक्चर बंक करूँ या ना करूँ, टू बी और नॉट टू बी। तो क्यों करूँ और क्यों नहीं करना चाहिए, इन दोनों का तुम लोग सोचते रहते हो, राइट। सो आपको ये सेंस डेवलप होता है और आपको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ ये सोचने का मौका मिलता है कि सही क्या है। दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग एंड दैट इज़ हाउ यू डेवलप योर पर्सनैलिटी। और आगे पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ये काम आने वाला चीज़ है, राइट। अगला पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। बात करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, ये सेंस डेवलप होना मतलब कम्युनिकेशन। तो सामने वाला कुछ बोल रहा है, आपको तभी उसको रिफ्यूट करना है, यानी कब करनी है। सामने वाले ने काफ़ी पॉजिटिवली अपना पॉइंट रखा है, काफ़ी काम और कंपोज में रखा है, उसी प्रकार से आपको बात करनी है। सो कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है, क्या बात करनी है, कब बात करनी है, इसका सेंस डेवलप होता है डिबेट से। मतलब क्या, एट द एंड योर कम्युनिकेशन स्किल इज पॉलिश्ड। कर लो अगला पॉइंट, presence of mind. हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब क्या, समझो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग प्रिपेयर करके कुछ भी नहीं आते, लेकिन व्हेन दे सिट एंड लिसन टू अदर्स सम आइडियाज कम इन देयर माइंड, ये होता है। और तब जाके इफ़ योर माइंड इज अलर्ट एंड इफ़ यू आर अलर्ट एंड यू आर लिसनिंग, यू गेट सम न्यू आइडिया एंड देन यू टॉक। एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पूना में, तो एक कॉल सेंटर था कन्वर्जिस करके, वहाँ पे हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन करना था और ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था लैंडलाइन वर्सेस मोबाइल फ़ोन। और उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन अभी इंट्रोड्यूस ही हुए थे, काफ़ी कॉस्टली अफेयर था, मेरे पास मोबाइल नहीं थे, तो मोबाइल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लैंडलाइन के बारे में पता था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले सुना सबको, और उनको सुनने के बाद पता चला कि मोबाइल मतलब ये ऐसा डिवाइस है कि हम लोग अपने जेब में कैरी कर सकते हैं और कभी भी कॉल कर सकते हैं, और लैंडलाइन को उसके अपोजिट हम लोगों को पुटअप करना था। तो मैंने लैंडलाइन के बारे में बोला, ज़्यादातर मुझे उसी के बारे में पता था, लेकिन आई अंडरस्टूड अबाउट मोबाइल फ़ोन ओनली बिकॉज आई वॉज अलर्ट। what others said who knew about mobile phone, I listened to them and then I put up my points. समझ लो, unless and until you are present over there and you have the presence of mind, आपका कुछ नहीं हो। समझ में आई बात। अगला पॉइंट, to develop listening skill, I think presence of mind and listening skill go hand in hand. listening मतलब क्या,
सामने वाला क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है ये समझना मतलब लिसनिंग। दूसरी बात बताता हूँ, लिसनिंग का मतलब होता है स्पीकर के दिमाग में जो है वो समझना मतलब लिसनिंग। बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा कि नहीं नहीं मुझे वैसा नहीं बोलना है, नहीं नहीं आई डिडंट मीन दैट। इसका मतलब क्या, हमने सुना नहीं अच्छे से। और सारे झगड़ों की फसाद यही होती है कि हम लोग सामने वाले को सुनते नहीं है। वी लिसन टू रिएक्ट, टू आंसर, नो लिसन टू अंडरस्टैंड। और जब हम लोग समझने के लिए सुनते हैं दैट इज लिसनिंग। तो आपको भी सामने वाला क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है ये अगर समझ में आ गया तो आपकी लिसनिंग डेवलप हो रही है। लिसनिंग के कारण नॉलेज मिलता है, नॉलेज बढ़ता है। हियरिंग किया, हियरिंग मतलब क्या, अभी ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं वो भी मेरे कान पे आ रही है, सर ने कुछ ड्रैग किया वो भी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान अगर उधर है तो मैं उसको सुन रहा हूँ। लेकिन जो लेक्चर चल रहा है मैं अगर उसी को सुन रहा हूँ दैट इज लिसनिंग। सर जब हम बोलते हैं तो वही बोलते हैं जो हमें पता होता है, लेकिन Correct. जब हम सुनते हैं Correct. तो वो भी बोल सकते हैं जो नहीं पता होता। करेक्ट, दिस इज गुड एट, क्लैप फॉर हर। उसने सही बात की। हम लोग बात उसी की कर सकते हैं जो हमें पता है, लेकिन सुनना मतलब क्या, जो हमें पता नहीं है वो भी हम लोग सुन सकते हैं। राइट, गुड। आगे पॉइंट, To develop leadership skills. डिबेट में बहुत बार झगड़ा हो जाता है, डिबेट में बहुत बार झगड़ा होता है। सो पॉइंट क्या चल रहा था अपना, डिवेलप लीडरशिप स्किल्स। नो, लीडर कोई अलॉटेड नहीं होता है कि हाँ ये टीम का लीडर अंकित रहेगा या वरद रहेगा, नो। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं कि वो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ये उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। तो कोई अगर बंदा शाउट कर रहा है, कोई आउट ऑफ पॉइंट बोल रहा है, तो ये सबको बराबर पॉइंट पे लाते हैं, डिस्कशन को ट्रैक पर लाते हैं और डिस्कशन को डेवलप करने में मदद करते हैं। दीज आर द लीडर्स। कभी कभी झगड़ा होने की कगार पे होता है तो ये इंटरवीन करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप बैठ जाओ, लेट अस लिसन। बहुत बार ओवरलैप हो जाता है, ये टीम भी बोलने लगती है, वो टीम भी बोलने लगती है, किसी को पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। तो उस वक्त ये लीडर लोग शांत सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं बैठ जाओ, शांति से बात करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं। दिस इज हाउ यू गेट योर लीडरशिप डिवेलप्ड। यस और नो? अलॉटेड नहीं होता है, सिलेक्टेड या इलेक्टेड नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है उसमें से। राइट, अगला पॉइंट, To learn to respect each other's point. यस, ये स्पोर्ट्समैनशिप आप सीखते हो कि भले ही सामने वाला मेरे अगेंस्ट बात कर रहा है लेकिन इसके पास लॉजिक है, सो लेट मी एक्सेप्ट इट एंड यू एक्सेप्ट इट। फाइन, दैट इज हाउ यू लर्न द स्पोर्ट्समैनशिप एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉइंट, ईच अदर्स ओपिनियन। दैट इज वॉट इज I mean that really matters in society also, in your personal life also. You will see, अगर सामने वाले को आपने बोला कि नहीं तू क्या फेंक रहा है यार, मैं अग्री नहीं करता, तो सामने वाला बिल्कुल हर्ट हो जाएगा और वो बात भी नहीं करेगा या झगड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला कि यस आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मेरा सिर्फ ओपिनियन ये था बात करने का, सो द वे यू टैकल द सिचुएशन यू लर्न अ लॉट। फाइन, सो यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स ओपिनियन बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट। ज़रूरी नहीं कि आप जैसा सोचते हो वैसा सामने वाला भी सोचे। फाइन, अगला पॉइंट, सो दिस इज हाउ द डिबेट इज। आपका जो टॉपिक होगा लिख लो, अटेंडेंस शुड बी मेड कंपल्सरी इन कॉलेज। अटेंडेंस शुड बी मेड कंपल्सरी इन कॉलेज। बोथ द साइड्स you have to prepare, and at 11th hour I will decide ki who would work in which team. One team will talk attendance should be made compulsory in college, another team will talk attendance should not be made compulsory in college. So good luck and come prepared.